Hello students, welcome back. Let's continue with differentiation, and in this video we are going to use differentiation by substitution. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां अगर कुछ थीटा मान लो या एक्स की जगह कुछ साइन कोस पुट कर दो तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं. एंड दो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस are actually very useful. So first let me tell you those substitution and then we will be using them. सबसे पहले if you see something like under root a square minus x square, then we put x equal to a cos theta या a sin theta. Now if I see x square minus a square का root, then I will use x equals to a sec theta या फिर a cosec theta. Now if I see a square plus x square, a square plus x square है तो I will use x equals to a tan theta या फिर a cot theta. ध्यान से समझना, जहां रूट लिखा है वहां रूट कंपल्सरी है, जहां रूट नहीं लिखा है वहां रूट ऑप्शनल है. तो लेट मी राइट द बोथ थिंग्स. रूट में हो या विदाउट रूट हो दोनों में यूज कर सकते हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड जो है वो बिना रूट का यूज नहीं कर सकते. नाउ वी हैव a plus x upon a minus x. In this I use a cos 2 theta. Then x plus a upon x minus a में I use a sec 2 theta. Then x minus a upon b minus x में I use x equals to a sin square theta plus b cos square theta. And the same can also be used in case they are in product. x minus a into b minus x प्रोडक्ट में होगा तो भी यूज कर सकते हैं. So that is, these are basically standard substitutions that we are going to use. Apart from this, other substitutions are also there. Inverse trigonometric function है, थीटा मान लेने का, थीटा मानने पे काम बहुत आसान हो जाता है. So these are some concepts, some substitutions that we are going to use along with some other substitution. So this is differentiation by substitution. ये standard है, non standard भी बहुत सारे होते हैं. So let me take first example, sine of 2 sine inverse x. Sine of 2 sine inverse x. As I said कि सीधा सीधा सॉल्व करोगे आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा. सो फॉर दैट लेट मी से कि इनवर्स फंक्शन को यूजुअली थीटा मान लेते हैं. तो इफ आई से कि साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स बिकम साइन थीटा एंड द क्वेश्चन बिकम साइन 2 साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था. इसको देख लो, ध्यान से समझ लो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. अब साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा इज व्हाट एक्स, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज the question. So dy by dx will be first function into differentiation of second root x का derivative 1 by 2 root x into 0 minus 2x plus second function into differentiation of first, that is 1. 2 को तो मैंने बाहर ही रखा है, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन दिस प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर एलसीएम लेना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एलसीएम लेंगे, माइनस 2 बाहर ले लिया तो मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट गिव्स मी 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. So that is one way of solving this question. But I have a better idea. जब x का वैल्यू साइन थीटा है और सॉल्व करने पे y का वैल्यू साइन 2 थीटा आया तो I can say कि दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन. x का वैल्यू थीटा के टर्म में, y का वैल्यू थीटा के टर्म में, तो दिस इज एक्चुअली पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया. और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो dy by dx कैसे फाइंड करते हैं?
dy by d theta upon dx by d theta. What is dy by d theta? dy by d theta is 2 cos 2 theta and dx by d theta is cos theta. खत्म, आंसर आ गया. द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमें आंसर x के टर्म में लिखना है, थीटा के टर्म में नहीं. ठीक है, तो 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? Okay. तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर वो होता है 2 1 minus 2 sin square थीटा अपॉन cos थीटा को आई कैन राइट अंडर रूट 1 minus sin square थीटा. So that gives me 1 minus 2x square upon under root 1 minus x square और ये 2 भी है यहाँ पे. Okay. So that is basically matching. So that is the whole idea. अब sin theta को x माना है तो this will be 2 1 minus 2x square upon under root x square. So this is how we proceed with substitution. Substitution किया, सब कुछ x में बना लिया, इनवर्स गायब हो गया ना, न साइन रहा न साइन इनवर्स, सिंपल सा अलजेब्राइक हो गया और सॉल्व करके आंसर आ गया. या फिर सब कुछ थीटा में कन्वर्ट हो गया तो इट बिकेम अ पैरामेट्रिक फॉर्म. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. So अभी in this video I am not going to consider those restrictions. तो I am going to solve them simply, assuming कि जो भी हम कर रहे हैं वो एक सिंपल सा जो इंटरवल है वो इंटरवल इसको जस्टिफाई करता है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक अलग सा वीडियो है, उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. बट फर्स्ट लेट मी डिस्कस दिस. पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर उसको सेम क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन के साथ सॉल्व करेंगे जब हमें इंटरवल्स मेंशन होंगे. सो दैट इज योर वन क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा तो आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल सॉल्व देम. ओके, सो नाउ वी हैव दीस टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हेन यू सी दिस एक्सप्रेशन, दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आना चाहिए a sin theta plus b cos theta, and whenever we have a sin theta plus b cos theta, what we do is we divide them by under root a square plus b square. मतलब 5 जो कि ऑलरेडी है अपने पास, अलग से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. एंड देन व्हाट वी डू, cos थीटा के साथ जो टर्म है अगर मैं इसको cos में लिखता हूं तो cos में ये 53 डिग्री है. अगर एंगल पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो यू कैन टेक इट एज अल्फा. और जैसे ये cos 53 हुआ, साइन के साथ वाला अपने आप साइन 53 हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव इज cos इनवर्स cos x cos 53 प्लस साइन x साइन 53. सो दिस इज cos इनवर्स. cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b. और cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा तो आई विल गेट x माइनस 53. नाउ सिंपली dy by dx will be 1 minus 0 and that is 1, which is not correct absolute term में. Absolute term में this is wrong. This is dependent on the cases. X की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा. But in this video we are not considering that. We are simply using the substitution and we are trying to find the answers. No restriction of inverse trigonometric concept. सीधा cos inverse cos कैंसिल कर दिया. ये हमेशा ट्रू नहीं होता है. cos inverse cos 200 डिग्री का वैल्यू 200 डिग्री नहीं होगा. But we are considering कि कोई कंडीशन गिवन नहीं है, कोई इंटरवल गिवन नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं. एंड सो वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एक्चुअली d dx ऑफ cos नहीं, cos इनवर्स होना चाहिए. cos इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 cos इनवर्स. कोई फॉर्मूले जैसा लग रहा है. लेट मी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा. सो व्हाट डू आई गेट? d dx ऑफ cos इनवर्स
tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। कुछ याद आया? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा होता है, तो ये माइनस cos 2 थीटा हो गया एंड दिस इज cos इनवर्स। सो व्हाट डू आई गेट? cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। नाउ दिस cos इनवर्स एंड cos कैंसिल हो जाएगा। अगेन कंसिडरिंग दैट इट इज ओके to pi minus 2. What is theta? Theta is actually tan inverse x. Differentiate किया तो I get 0 minus 2 upon 1 plus x square. इससे भी हम पैरामेट्रिक बोल सकते थे कि x इक्वल टू tan थीटा एंड y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। तो पैरामेट्रिक से भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट मैंने ओवरऑल x में कन्वर्ट कर लिया। So this way we can solve the questions using the proper substitution. ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है, इसलिए हमने यहाँ पे a tan थीटा या a cot थीटा में से कोई भी यूज कर सकते थे, तो मैंने tan थीटा यूज किया। So we'll solve some more. Okay, so now we have these two more questions. क्या पुट करें सोचो। What should we use? सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आएगा, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? इफ यू सी दिस यू विल से x इक्वल टू साइन थीटा या cos थीटा। इफ यू सी दिस यू विल से cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा और cos थीटा इज ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ थिंग, सो आई एम गोइंग टू यूज x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। आई एम गोइंग टू यूज x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। लेट मी से कि ये y है, तो y मिलेगा tan इनवर्स cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो दिस इज साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट tan इनवर्स cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा। क्या करें? यू नो 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? cos प्लस साइन को cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक यूज कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस साइन 2 थीटा इज बेसिकली cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था, यू नो अबाउट दिस। नाउ इफ यू वांट स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा। कैसे आता है आपको पता होना चाहिए। प्लस साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट आई एम गेटिंग इज tan इनवर्स cos माइनस साइन इंटू cos प्लस साइन। cos प्लस साइन एक कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड दिस इज साइन 2 tan इनवर्स 2 कैंसिल, दिस बिकम tan थीटा। अगेन not considering the interval, I am assuming that everything is okay without any condition. Now we know something about this function. What is this? ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है। दिस इज tan 45 डिग्री माइनस थीटा। अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं तो वीडियो देखोगे ट्रिपलेट ऑफ tan x, ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो बनाया हुआ है ट्रिपलेट ऑफ tan x का। tan थीटा का tan के फॉर्मूले का ट्रिपलेट होता है। इसको पूरे को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एंड देन और वो होता है tan 45 माइनस थीटा प्लस साइन। अच्छा यहां क्या हो जाएगा? इफ यू सी दिस इज साइन 2 थीटा, tan इनवर्स tan विल बिकम व्हाट? 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। नाउ आई कैन से कि एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। दिस इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, या तो इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, x में कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले पैरामेट्रिक में डिफरेंशिएट करके एंड देन कन्वर्ट टू x।
बट हाउ डज इट मैटर? लेट मी डू वन थिंग, सीधा सीधा मैं x में कन्वर्ट करता हूं, तो आई कैन से y इज 45 डिग्री, लेट मी से π/4 थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा देखोगे तो वो cos इनवर्स x का हाफ है, 2 थीटा इज cos इनवर्स x, तो थीटा इज हाफ cos इनवर्स x, प्लस साइन 2 थीटा विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ x में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट एंड यू कैन फाइंड कि dy/dx विल बी 0 माइनस 1/2, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है 1 अपॉन 2 रूट x इंटू माइनस 2x। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। सीधा सीधा करते तो भी यही आंसर आता, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने इसे कन्वर्ट किया। पैरामीट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा, बाद में x में तो कन्वर्ट करना ही है, तो मैंने पहले ही x में कन्वर्ट कर दिया एंड देन डिफरेंशिएशन किया। दिस क्वेश्चन, in this question what we are going to do is I am going to use x equal to a sin theta. I am going to use x equal to a sin theta under root a square minus x square. That will give me d dx of tan inverse x is a sin theta upon under root a square minus a square sin square theta. If you see closely, you will find कि ये a sin theta upon a cos theta है, मतलब d dx of tan inverse tan theta है। तो without any consideration of interval, I can say कि d dx of theta है। अब you can say कि ये y equal to theta and x equal to a sin theta, कन्वर्ट कर दो पैरामीट्रिक में और सॉल्व कर लो, या फिर लेट्स कन्वर्ट दिस टू x। थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x बाय, एंड सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ए स्क्वायर का रूट ए और ए कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज another question. So there are so many questions related to this that we'll be able to find. So in the next video I am going to tell you the story behind these substitutions. ये substitutions कहाँ से आए, कैसे हमें खुद का substitution डिजाइन कर सकते हैं, how will we know if we forget कि substitution क्या था, can we design our own substitution? Yes we can, and we will learn it in next video. Thank you. Hello students, welcome back and let's continue with differentiation by substitution. ये कुछ standard substitution आपको बताएंगे, and in this video I am going to tell you how to design your own substitution. अपने खुद के substitution आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, अगर ये नहीं पता, नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं। So the idea behind substitution is, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। You have to keep two things in mind. पहला कि ये सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, और दूसरा इसका पूरा डोमेन कवर होना चाहिए। मतलब इफ आई हैव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले इसका डोमेन फाइंड करते हैं। वी नो दैट रूट के अंदर का जो टर्म होता है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस ए प्लस ए, और सॉल्व करेंगे, साइन लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये, तो x का वैल्यू माइनस ए टू ए हो सकता है। नाउ जो भी हम x का वैल्यू पुट करने वाले हैं, वॉट एवर सब्स्टिट्यूशन वी आर प्लानिंग, उसका रेंज, उसका वैल्यू माइनस ए टू ए तो मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा चलेगा, बट ये तो होना ही चाहिए, इसका सबसेट नहीं हो सकता, इधर एग्जैक्टली दिस और इट्स सुपरसेट। यूजुअली वी प्रेफर एग्जैक्ट। एंड सेकेंड इज कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी होना चाहिए। डू वी नो एनी फंक्शन जिसका रेंज माइनस ए से ए होता? यस, ए साइन थीटा,
बिकॉज साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, इसका मतलब a साइन थीटा का रेंज -a2 + a होगा। सो वी कैन से कि वी आर यूजिंग x = a साइन थीटा और a cos थीटा, क्योंकि वो पुट करने पे जस्टिफाई भी है। अब x = a tan थीटा भी रख सकते हैं, वो भी इस पार्ट को कवर करता है, थोड़ा ज्यादा है बट दैट्स ओके, बट ये पार्ट को कवर करता है, बट उससे फायदा नहीं होगा। a² - a² tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग, बहुत मतलब कुछ अच्छा सा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड इज कि पूरा डोमेन कवर होना चाहिए और सिंप्लीफाई भी होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड वन, √x² - a², तो x² - a² should be greater than equal to 0. So what we need is any number जिसका वैल्यू -∞ से -a यूनियन a to infinity हो, and we know that sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू -1 से कम और a से ज्यादा होता है। तो what I am going to do is I am going to take a sec थीटा और a cosec थीटा। थर्ड वाले केस में देखोगे a² + x² है, रूट की बात करोगे तो a² + x² पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो हमेशा होता है, मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू है तो tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, tan cot का रेंज r होता है। सिमिलरली यू कैन गो फॉर दिस वन, √a + x अपॉन a - x की बात करें तो a + x अपॉन a - x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो रूट्स -a + a आए, रूट्स -a + a आया, साइन लगाया तो माइनस प्लस माइनस आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए तो x का वैल्यू मिला -2a क्लोज, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो ओपन विल डू। Do we know any function whose range is -a open to a close? Not exactly, but -a to a close हमें पता है, and that is a sin theta, a cos theta. So we can use a sin theta, we can use a cos theta. So a cos theta पुट करना थोड़ा ज्यादा अच्छा था, बिकॉज 1 + cos थीटा का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 cos square theta by 2, 1 - cos थीटा का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 sin square theta by 2. So we prefer cos. अब जब cos भी यूज किया तो आंसर में थीटा बाय 2 आता था। So to be more practical, we converted theta to 2 theta. अब 2 थीटा रखोगे तो ये सीधा सीधा थीटा में आ जाएगा, अच्छा दिखेगा। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, √x + a अपॉन x - a में अगर डोमेन निकालोगे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आना चाहिए। नंबर लाइन बनाया -a + a ±1 एंड दिस। नाउ यू नो दैट कि दिस इज अगेन सेक थीटा और कोसेक थीटा वाला आइडिया आएगा। सेक थीटा कोसेक थीटा में फिर सब कुछ ऐसा ही सोचेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो सेक इज बेटर ऑप्शन और उसमें भी 2 थीटा इज बेटर ऑप्शन। इफ यू वांट यू कैन यूज थीटा ऑल्सो, a cos थीटा भी चलेगा, बट सिंप्लीफाई करने पे θ/2 आएगा। इफ दैट्स ओके विद यू आई डोंट माइंड, बट इट्स बेटर टू गेट θ/2 की जगह थीटा आना ज्यादा अच्छा। इन दिस केस इफ आई सी तो क्या मिलेगा, x - a अपॉन b - x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। रूट्स निकाला तो a और b आया, आई एम अज्यूमिंग दैट a इज लेस देन b, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। तो हमें चाहिए एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज a से b में हो, बिकॉज हेयर x का वैल्यू a से b के बीच में होना चाहिए, b पे ओपन हो जाएगा, a पे क्लोज हो जाएगा। Now do we know any function जिसका रेंज a to b होता है, क्लोज भी होगा तो चलेगा, मैंने बोला सुपर सेट चलेगा, सबसेट नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेंज पहली बार जब पढ़ा था तो दैट वाज a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज था -√a² + b² से प्लस √a² + b², -√a² + b² से प्लस √a² + b²। इसके साथ एक और केस आपको बताया गया था, एंड दैट वाज a sin² थीटा
प्लस बी cos स्क्वायर थीटा, और इसका रेंज होता था a टू b, और वही हमें चाहिए, इसलिए हमने क्या यूज किया, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा. So this is how we are going to design our own substitution. You can actually do this. Let's find out. एक क्वेश्चन लेते हैं 2ax minus x स्क्वायर का रूट. You have to design the substitution. किसमें क्या substitution हमें करना है so that simplify भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए. So pause the video, try to find. I am going to solve. So idea is कि 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रूट निकालेंगे तो आएगा x बिलोंग टू 0 से 2a. ऐसा कोई फंक्शन जिसका रेंज 0 से 2a होता? यस वी हैव, एंड दैट इज 2a साइन स्क्वायर थीटा या 2a cos स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 to 1, तो 2a साइन स्क्वायर का थीटा का वैल्यू 0 से 2a, 2a cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 2a. अब ये पुट करोगे तो सिंप्लीफाई भी बहुत अच्छा होगा. दिस विल बी वेरी गुड सिंप्लीफिकेशन एंड डोमेन तो पूरा कवर हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन योर ओन सब्स्टिट्यूशन. और अगर ये भूल गए, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड इट कि एक्चुअली में व्हाट शुड बी सब्स्टिट्यूशन. Thank you.